color. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम What कवर will be करने the की color of कोशिश the करेंगे वो baby है eye? ब्लड Or ग्रुप्स one will के be बारे brown and में other आज will हम be बात blue. करेंगे। Or half will be brown and half will be blue. तो Yes, what will be आपने the color of कभी eye? सोचा है कि जब हम ब्लड मिक्स No, no, करते no. हैं एक Okay, डोनर then you का must know और एक which gene is एक्सेप्टर का, dominant, बाज़ blue or औक़ात brown. हमें पता चलता है Brown is dominant. कि ये So ब्लड what ग्रुप्स happens जो है if आपस में both are क्लम्पिंग brown, कर रहे baby हैं, eyes are brown. एग्लूटिनेशन कर रहे हैं, But if one is blue, other is और brown, बाज़ brown औक़ात is the ये नहीं dominating. करते। अब Brown is the सोचें dominating gene. So still पिछली baby दुनिया eyes में will be जब इसके बारे में brown. इतनी इंफॉर्मेशन Their नहीं थी genotype will be और लोग blue and brown, but ब्लीडिंग की phenotype will वजह be, से again I'm या sad, किसी और वजह से, brown. फ्लूइड Is that लॉस की right? वजह से Here मर जाते genotype थे। is brown and तो phenotype is ऐसे में also एक brown. ऑस्ट्रेलियन But now we साइंटिस्ट imagine ने इस मसले को another सुलझाया baby which 1901 में। inherits उसका नाम था कार्ल maternal लैंडस्टेनर। allele for blue क्या नाम था? and कार्ल paternal allele लैंडस्टेनर। also और इसी वजह से blue. उसको Now what will be the color of eyes? 1930 में Blue. नोबेल What प्राइज did से we learn ऑनर here? किया We गया था, learned this thing that if क्योंकि उसने brown, इस one is मसले को brown and सुलझा one दिया था। allele is brown and अब other allele is उसने क्या किया blue, था? then इसने brown कुछ will कवानीन dominate and show वज़ा its किए effect. थे, And उसकी blue बात is भी आएगी, पर recessive. ब्लड की बात पहले Blue करते is हैं। recessive because ब्लड in the में presence of brown टोटल it जो becomes है suppressed ब्लड and it टाइप्स does आर not show इनहेरिटेड, ये your हमें blue अपने eye. पेरेंट्स Is से that मिलते clear? हैं Blue colored eye, I must say. Is that और right? दोनों पेरेंट्स Now इसमें we come इन्वॉल्व back होते to हैं। this. So if you really और want अभी blue eyes, तक टोटल then both of them 36, should be पांच mother and जगह लिखा father है both should bring which 28 color? ह्यूमन ब्लड ग्रुप Blue. सिस्टम्स Is that right? डिस्कवर हो चुके हैं Now we learned this is और dominant gene इनको and this is बनाने में recessive 346 gene. एंटीजेंस Recessive gene. इन्वॉल्व हैं Now we come over here. और Here अभी I've तक said ये डिस्कवर if हो there चुके is हैं, आगे A हो सकता है और भी डिस्कवर हो allele, जाए। but इनको if this A ब्लड allele, ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया other may हुआ be है। A or may not be अब A. इन 36 Other या may be A 28 or may be में non-functional जो or may दो be मोस्ट non-functional. इम्पोर्टेंट What will हैं be the group वो of है blood? ABO सिस्टम A. और So it means A RH। is dominant or ये दो recessive? सिस्टम इम्पोर्टेंट है। It is आउट ऑफ dominant. दीज In the presence 36 of और O, 28, okay, we call it O. ये In the 36 presence और of O, 28 मैंने कहा A देखिए दोनों dominates. So we विकिपीडिया call के it एक ही फाइल what is में the है। word? शुरू में Dominant. 36 लिखा है, लास्ट में 28 लिखा है, And this O will be तो मैंने दोनों का यहाँ recessive. पर This is जिक्र कर दिया है। recessive. Now we come again. So that अच्छा, is why दे डिटरमाइन each of our समवन्स blood ब्लड group टाइप। A, they ये have जो दो both A or they ग्रुप्स may हैं have one या A, दो but सिस्टम हैं, because इससे A हम gene is किसी भी dominant, इंडिविजुअल के then ब्लड O ग्रुप will को not have influence and पता still कर blood सकते group हैं और will उनको be हम नाम A. देते हैं Is A, that right? Now we B, come to next example. AB Even B is या also O dominant. विद Why? Because if पॉजिटिव B is और present with नेगेटिव, B, of course, या हम B इसको will नल be blood. डिनोटिंग भी But if कहते B हैं is और present with इसको हम O, RH-D स्टेटस भी still कहते blood हैं group will be पर सुटेबिलिटी B. इन So it ब्लड means ग्रुप B is ट्रांसफ्यूजन। also और ये सब हम dominant in मालूम the presence इसीलिए of कर रहे हैं, जिस तरह मैंने O, स्टार्ट में which is कहा था non-functional. Clear? कि But now come over हमें here. ज़रूरत होती है ब्लड One parent ट्रांसफ्यूजन give की, A ब्लीडिंग हो जाती है allele बाज़ औक़ात पेशेंट्स for में, allele तो for ये सारा pathway सिस्टम A, हम other इसलिए parents मालूम कर give रहे हैं allele एंड for दैट्स व्हाई pathway दे आर इम्पोर्टेंट। B, right? अब बात करते हैं Now ABO both of ब्लड them ग्रुप are की। able to express. अब So none of them is ABO ब्लड recessive, ग्रुप सिस्टम but में both of them are टू एंटीजन इन्वॉल्व dominant. है। Both of them are अब टू एंटीजन expressive. इन्वॉल्व So है, साथ में टू what we can एंटीबॉडीज say भी here, इन्वॉल्व है। this इन is दोनों एंटीजन की एंटीबॉडीज co-dominance. फाउंड इन ह्यूमन Co-dominance. बॉडी। अच्छा, You know, द when टू husband and एंटीजन्स wife, both आर of them are co-dominants. एंटीजन They're ए fighting all the और time एंटीजन बी। because both of them want to जो have their दो expression. एंटीजन इन्वॉल्व है One वो partner एंटीजन is ए recessive, और बी other है, is और dominant. जो दो That एंटीबॉडीज system is played इन्वॉल्व very हैं वो है beautifully. एंटीबॉडी ए और Very एंटीबॉडी good. Whole बी। structure of the family will be according to the अब dominant जो partner. एंटीजन प्रेजेंट है And recessive will be वो just रेड agreeing ब्लड to सेल everything की whatever is सरफेस पर happening. है But if both of और them are एंटीबॉडी जो co-dominant, प्रेजेंट है trouble will come. वो सीरम But में let's come to प्रेजेंट है। what is अब happening here. रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड, ऑल ह्यूमन Both बीइंग of कैन them बी are क्लासिफाइड actually इनटू 4 ग्रुप्स। O अब is इन एंटीजन recessive को in the लेकर presence of B. O तमाम is also इंसानों recessive को in the presence of 4 A. ग्रुप्स में But if डिवाइड किया गया so है। none of वो them would लोग be जिनमें O. एंटीजन ए But मौजूद है when both of और them are उनमें एंटीजन बी together, मौजूद है, like वो blue eye लोग situation, जिनमें if एंटीजन both बी of them are मौजूद है together, और then O एंटीजन trait ए is shown. मौजूद है, और Blood ऐसे group will लोग भी become हैं जिनमें O. एंटीजन So ए all the babies और बी in this दोनों world मौजूद है who are born पर with इनके blood group खिलाफ O, कोई एंटीबॉडी नहीं their मौजूद। अब खुद सोचिए, genotype अगर इनमें से must एक भी be एंटीबॉडी मौजूद होती तो इस एंटीजन पर both अटैक sides करती, O तो O. इसमें कोई एंटीबॉडी Is that नहीं है। right? और
all अब babies एक which are चौथा born with ग्रुप blood ऐसा भी group है जिसको AB, हम their genotype should एंटीजन be नील या AB. ओ कहते हैं, But ग्रुप all ओ। the babies who are born वो with हमने सुना हुआ है। blood अब group B, इसमें their कोई underlying may be एंटीजन मौजूद नहीं, AB or BO, पर and एंटीबॉडीज all babies who are दोनों born with मौजूद हैं। A, ठीक है, right? एक बार फिर They will have स्लाइड को underlying रिकॉल genotype करते हैं। either हम AA कहते हैं from both कि parents, they ए are बी bringing the ओ allele ब्लड which is ग्रुप A सिस्टम or की हम बात कर AO, रहे हैं। ये right? ब्लड ग्रुप Any question up to this? एंटीजन और एंटीबॉडीज Clear? को लेकर Okay, बना let's है। have a break. इस ग्रुप में दो एंटीजन इन्वॉल्व है Thank जिनके you. नाम है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी, और इसके खिलाफ दो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी। जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए पर अटैक करती है और एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पर अटैक करती है। अब इस सारी सिचुएशन को लेकर तमाम इंसानों के ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस ग्रुपिंग सिस्टम के मुताबिक वो लोग जिनमें एंटीजन ए मौजूद है और उनमें एंटीबॉडी बी मौजूद है। अब होता क्या है, अगर इस एंटीजन ए ग्रुप के बंदे को हम ब्लड दें बी, तो उसके खिलाफ ये बी एंटीबॉडी खड़ी हो जाती है और रिएक्ट करती है, वाइस वर्सा फॉर दैट वन। और ये वाला ब्लड ग्रुप जो है इसमें दोनों एंटीजन मौजूद है पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मतलब हम इसमें से कोई भी एंटीजन दे दें ए बी या दोनों मिलाकर ए बी दे दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। पर यहाँ पर फर्क पड़ता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी है, ना हम इसको ये ए दे सकते हैं, ना हम इसको बी दे सकते हैं, ना हम ए बी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज मौजूद है। अब ये एंटीजन जो मौजूद होता है, ये हमने पहले कहा कि ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी मौजूद होता है। ठीक है, ग्रुप ए यहाँ पर ये जो सर्कुलर जिसे कहते हैं एक वो हाथ में पकड़ने वाली जो माइक्रोस्कोप होती है जासूसों वाली, उस तरह का बनाया हुआ है, एंटीजन मौजूद है। ठीक है, इसकी सरफेस पर। ग्रुप बी पर एंटीजन बी मौजूद है और ए बी पर देखें दोनों मौजूद है। अगर आपको याद हो क्लास में भी मैंने समझाया था। और ओ पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं। अब इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में हम देखते हैं इसके प्लाज्मा में, क्योंकि ब्लड तो प्लाज्मा और आरबीसी से मिलकर ही बनता है ना। तो प्लाज्मा में जहां एंटीजन ए मौजूद है वहां एंटीबॉडी बी मौजूद है, जहां एंटीजन बी मौजूद है वहां एंटीजन ए मौजूद है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों एंटीजन तो मौजूद है पर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, और यहाँ पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं और दोनों एंटीबॉडी मौजूद है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं देयर इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल, एंटीजन ए इज एग्लूटिनेटेड विद एंटीबॉडी ए। जिस तरह मैंने कहा कि ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है ये सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होगा। सिमिलर का मतलब क्या है कि एक जैसे, यानी एंटीजन ए के ऊपर काम एंटीबॉडी ए ही करेगा और एंटीजन बी पर एंटीबॉडी बी ही काम करेगा। This transfusion can be considered safe as long as the serum of the recipient does not contain antibody for the blood cell antigen of the donor। तो हमारे ट्रांसफ्यूजन तभी सेफ होगा जब हमारे डोनर में कोई ऐसा एंटीजन ना हो जो हमारे रिसिपिएंट के ब्लड में उसके खिलाफ एंटीबॉडी हो, या हम कहें कि हमें कोई रिसिपिएंट को कोई ऐसा ब्लड नहीं देना जिसके खिलाफ ऑलरेडी रिसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और हमें पता है अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी मौजूद होगी, तो हम इसको बी ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है कि उसके पास बी के खिलाफ ताकतवर फोर्स मौजूद है। इसी तरह हम बी ब्लड ग्रुप वाले को ए नहीं दे सकते और ए बी भी नहीं दे सकते क्योंकि ये एंटीजन जो है इसके खिलाफ, यानी कि ए के खिलाफ इसके ब्लड में एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद है। अब जिस लैंडस्टेनर का जिक्र मैंने शुरू में किया था
यहाँ पर इसकी बात करते हैं क्योंकि ऊपर का पैरा हमें इसी बात को समझा रहा है। लेंस स्टेनर ने कहा क्या था? वो कहता है इफ अ पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन यानी एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर एक खास एंटीजन मौजूद है आरबीसी पर, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट। मतलब ये है कि अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ब्लड में बी के खिलाफ एंटीजन नहीं होगी, यानी एब्सेंट होगी उसके सीरम में। तो उसके सीरम में कौन सी एंटीजन होगी, एंटीबॉडी होगी? ए होगी। अब दूसरे कानून को देखते हैं। इफ अ पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट इन आरबीसीज, अगर आरबीसीज पर एक एंटीजन मौजूद नहीं है, द कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब ये है कि जिस बी ब्लड ग्रुप का जिक्र मैंने ये इसके साथ किया, उसी को इमेजिन करें कि अब ब्लड ग्रुप यहाँ पर बी एंटीजन तो मौजूद है, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर जो मौजूद नहीं है यानी कि ए, तो ए अगर मौजूद नहीं है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पर मस्ट प्रेजेंट होगी। तो लेंस स्टेनर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की? जो एंटीजन मौजूद है एक ब्लड में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी उसी ब्लड में मौजूद नहीं होगी, और जिस ब्लड में एक खास एंटीबॉडी मौजूद हो तो उसके खिलाफ एंटीजन उस ब्लड में नहीं होगा। यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है। जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेंस स्टेनर लॉ है इज अ फैक्ट, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू RH फैक्टर। ये बात तो सही है, बट RH फैक्टर पर ये बात लागू नहीं होती। लेंस स्टेनर लॉ इम्पोर्टेंट है, ये बंदा भी इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से पढ़िए और याद रखिए। अब RH ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम ब्लड का जिक्र करते हैं हम हमेशा ये नहीं कहते कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, बी है या AB है या O है। हम हमेशा कहते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, इस तरह से हम इसका जिक्र करते हैं। तो वो पॉजिटिव का लफ्ज यहाँ से आता है, इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से पॉजिटिव का जिक्र आता है। द RH सिस्टम, RH मीन रिसूस, ये एक मंकी का नाम है, इज द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद करंटली 50 एजेंट्स। इसमें 50 एंटीजेंस मौजूद है इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंटीजन है, 50 है। अब द मोस्ट सिग्निफिकेंट RH एंटीजन इज D एंटीजन। जो सबसे सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो D है। क्योंकि बिकॉज इट इज मोस्ट लाइकली टू प्रोवोक एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। ये D ही है जो रोलर डालता है, पंगा डालता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ द 5 मेन RH एंटीजन। अब ये प्रोवोक करता है और हमारे सिस्टम को रिस्पॉन्स पर मजबूर करता है। इट इज कॉमन फॉर D नेगेटिव इंडिविजुअल नॉट टू हैव एनी एंटीजन D। अब जो D नेगेटिव है उनमें D नहीं होगा, ठीक है, एंटी D यानी कि एंटीबॉडी D नहीं होगी क्योंकि वो नेगेटिव है। पर AB पॉजिटिव की जो हम बात कर रहे थे, जहां पर एक एंटीजन मौजूद होता था तो उसकी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती थी, और अगर उसकी एंटीजन मौजूद नहीं तो एंटीबॉडी मौजूद होती थी। ऐसा ही था ना कि एक ब्लड ग्रुप है लाइक A, तो उसमें एंटीबॉडी भी मौजूद होती थी। पर यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर फैक्टर D या एंटीजन D मौजूद ना भी हो तो जरूरी नहीं कि वहां पर एंटीबॉडी D मौजूद हो। D की एंटीबॉडी एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है, यानी IgG और IgM एंटीबॉडीज एब्सेंट भी हो सकती है। बिकॉज एंटी-D एंटीबॉडीज आर नॉट यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस। ये आमतौर पर एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस के खिलाफ प्रोड्यूस नहीं होती। However, D negative individual can produce IgG anti-D antibodies following a sensitization event। हालांकि ये प्रोड्यूस हो सकती है अगर हमें कोई जिसे कहते हैं, अगर हमें कोई एक ऐसा एंटीजन मिले
यानी कि हमें एंटीजन डी मिले तो ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। पॉसिबल feto-maternal transfusion of blood from a fetus in a pregnancy or occasionally a blood transfusion with D positive RBCs। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये फिनोमेना जो मैंने यहाँ ऊपर समझाया, ये फीटो-मैटरनल यानी कि फीटस और मैटरनल माँ और बच्चे के बीच में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से पैदा हो सकता है। हो सकता है कि माँ डी नेगेटिव हो बट बच्चा डी पॉजिटिव हो, तो ऐसे में बच्चे से ये डी एंटीजन माँ के पास चला जाए और माँ में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए और फिर ये एंटीबॉडीज बच्चे के पास आए, तो बच्चे के पास तो इन एंटीबॉडीज के लिए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये एक कॉमन फिनोमेना है जो एनवायरनमेंट आम माहौल में आपने देखा होगा। ठीक है, इर्द गिर्द ऐसा अक्सर हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी बीवी RH पॉजिटिव हो या फिर आप दोनों ही RH नेगेटिव हो। तो आगे बढ़ते हैं। RH डिजीज कैन डिवेलप इन दीज केसेस। ऐसे में RH की डिजीज बन सकती है। RH नेगेटिव ब्लड टाइप्स आर मच लेस कॉमन इन एशियन। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि हम पॉजिटिव होते हैं मोस्टली, यानी 0.3% जो है वो शायद नेगेटिव हो, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। एंड देन दे आर यूरोपियन में ये सिस्टम जो है 15% तक हमसे ज़्यादा है, वो 15% जिसे कहते हैं अपनी आबादी में RH नेगेटिव है। तो ये फिनोमेना फीटो-मैटरनल वाला वहाँ ज़्यादा कॉमन है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर को हम कैसे जाहिर करते हैं? प्लस और माइनस साइन के साथ, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A माइनस, A नेगेटिव, B नेगेटिव, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन में भी यही समझाने की कोशिश की गई है। अब हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप देखे, ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं। तो 28 ब्लड ग्रुप सिस्टम का मैंने आपसे जिक्र किया था जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इनको, जिसे कहते हैं, आइडेंटिफाई किया है और माना है। अब अदर दिन ABO और RH, thus in addition to ABO एंटीजन, अब ऐसा नहीं है कि किसी में ABO और RH की हमने बात कर दी तो बस इसमें वही दो हैं या बकिया के लिए कोई और इंसान आते हैं, नहीं। एक बंदे में इन दो ग्रुप के साथ साथ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिसे कहते हैं M and N पॉजिटिव। MNS सिस्टम कहते हैं एक बंदा के पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्लूडिंग दीज टू ABO और RH सिस्टम, और लीविस A और लीविस B सिस्टम के तहत, लीविस सिस्टम के तहत लीविस A और लीविस B भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह बकिया 28 ग्रुप्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। Many of the blood group system were named after the patient in whom the corresponding antibodies were initially encountered। ये जो नाम है अक्सर 28 में से अक्सर, यानी तमाम नहीं, ये उन पेशेंट के नाम पर रखे गए हैं। सही है। तो टोटल हमारे पास अदर दिन ABO कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? 28, और ये ब्लड ग्रुप इन्हीं ब्लड ग्रुप के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, बट ये लेस कॉमन है। ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टेबल है। अगर ये हमारे रिसिपिएंट्स के ब्लड ग्रुप हैं और ये हमारे डोनर के ब्लड ग्रुप हैं, तो हम इनको यूं क्रॉस करते हैं। क्या हम O नेगेटिव को दे सकते हैं? यस, हम दे सकते हैं। क्या हम O नेगेटिव O पॉजिटिव को दे सकते हैं? यस, हम दे सकते हैं। मतलब इसको देखें तो हम O नेगेटिव तमाम ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। अब यहाँ पर O पॉजिटिव हम O नेगेटिव को दे सकते हैं? नो, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
इसके पास एक एंटीजन मौजूद है RH, और इसके पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है, या अगर नहीं भी है तो ये बना सकता है। तो अगर ये हमने इसको दिया तो लफड़ा हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, एक ही जैसे हैं, तो दे सकते हैं। यहाँ पर O पॉजिटिव O नेगेटिव, A नेगेटिव। अब इसके पास जिसे कहते हैं कोई एंटीजन A या B तो मौजूद नहीं जो यहाँ पर पंगा डाल सके, यानी एंटीजन B अगर यहाँ पर होता तो ये इसके साथ पंगा डाल सकता था। बट O पॉजिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर वही वाला फिनोमेना है कि यहाँ पर RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हो सकती हैं या पैदा हो सकती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव के साथ हम दे सकते हैं। नीचे देखिए, पॉजिटिव के साथ हम O पॉजिटिव दे सकते हैं। A नेगेटिव हम O नेगेटिव को दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि O जहां पर लिखा है उसके वहां पर A और B के खिलाफ एंटीजन मौजूद है। तो देखिए, ये आप कोई भी यानी O के अलावा आप इसको नहीं दे सकते। इस टेबल को गौर से पढ़िए। इस तरह की टेबल आपके एग्जाम में आ सकती है, बीच में जगह खाली होंगी, वो आपने फिल करनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और टेबल है, प्लाज्मा कंपैटिबिलिटी टेबल। अब यहाँ पर हम ये रिसिपिएंट का प्लाज्मा है, ये डोनर का प्लाज्मा है, और O हम O को दे सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा एंटीजन जो है RBC की सरफेस पर है और एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में है, ठीक है। तो प्लाज्मा में यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ये दोनों यानी हम पहले इसकी बात करते हैं। रिसिपिएंट O हम इसको दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते। अब कोई मुझे बताएगा कि इसके पास इस प्लाज्मा में क्या ऐसी चीज है जो यहाँ पर पंगा डाल सकती है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, असाइनमेंट जब इस पर आएगी इसी तरह के क्वेश्चंस मैं उसी में भी डालूंगा। हमने ऊपर इतनी डिटेल में पढ़ा, आई होप आप इसको आंसर कर सकेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं वो काइंडली इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से महफूज रहिए।